Hello friends, welcome to my channel Extreme English. In this video, we are going to cover three most common situations or conditions when would is used. So would is an auxiliary modal verb or helping verb. It means it is used before main verb. Basically, would is past form of will. So let's see which are those three most common conditions or situations when would is used. So, first, would is used to talk about future action in past tense. जब हम past tense में किसी future होने वाली action के बारे में बात करते हैं तब हम would का इस्तेमाल करते हैं. Second, would is used to talk about future action in reported speech. And third, it is used to talk about past habitual actions. It does not mean that would is used in these three situations or conditions only. There are some certain conditions when would is used. That conditions we will cover in next part of this video. So the first condition is the condition when we talk about the future action in the past tense. इसका मतलब ये है कि जब हम past tense में किसी future action के बारे में बात करते हैं that time we use would. So let's understand the first condition. Here we have given two sentences. First, we read the sentences. Even as a boy, I know that he will succeed in life. And second sentence says, even as a boy, I knew that he would succeed in life. Even as a boy, मुझे पता है, I know that he will succeed in life. वो लाइफ में succeed होगा. In this sentence, I know represents present tense and he will represent future action. So present tense में future action हो रही है, therefore we used will. Now see the second sentence. Even as a boy, I knew that, मुझे पता था, that he would succeed in life, कि वो लाइफ में succeed होगा. In this sentence, knew represent the past tense and therefore to tell about the future action that he would succeed in life, कि वो लाइफ में succeed होगा, we have used would here. Let's see some more examples. I think it will rain. मुझे लगता है शायद बारिश होगी. Now see the second sentence. I thought it would rain. अब इस सेंटेंस में हमने would यूज़ किया है. Why? Because we are talking about the past tense which is represented by I thought. मुझे लगा. First sentence which is I think represent present tense. So therefore we used will. But in second sentence it is I thought means past tense. So therefore we need to use would. Let's see the third example of this type. It is I will marry you. And the second sentence is I said I would marry her. So ये जो sentence है यहाँ पर I said है. It means the sentence is in past tense. So therefore हमने यहाँ पर would use किया है. So from these three examples, it is now clear that would is used in condition when we talk about future action in past. Now let's see the second condition when we use would. अब ये वो कंडीशन है जब हम रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते हैं. लेट्स क्लियर दिस फ्रॉम द एग्जांपल्स गिवन. ही सेड आई विल नॉट सिंग. उसने कहा मैं गाना नहीं गाऊंगा. अब ये जो सेंटेंस है वी हैव कन्वर्टेड दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच. सो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्या कहता है? ही सेड दैट ही वुड नॉट सिंग. अब यहाँ पर हमने आई विल को
कन्वर्ट करके ही वुड यूज़ किया है। अब ही सेड दैट ही वुड नॉट सिंग, ये जो सेंटेंस है ये रिपोर्टेड स्पीच में है। सो देयरफॉर जब रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर के बारे में बात होती है दैट टाइम वी यूज़ वुड। लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। शी सेड माय मॉम विल बाय सम एग्स। उसने कहा मेरी मॉम कुछ एग्स खरीदेंगी। अब ये जो सेंटेंस है इसको हमने रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया है। सो शी सेड दैट हर मॉम वुड बाय सम एग्स। अब यहाँ पर हमने माय मॉम विल को कन्वर्ट करके उसको हमने लिखा है हर मॉम वुड बाय। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर विल के जगह पे वुड यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि शी सेड माय मॉम विल बाय सम एग्स, उसने कहा मेरी मॉम कुछ एग्स खरीदेंगी। खरीदेंगी मीन्स ये जो एक्शन है ये फ्यूचर में होगी। सो इसी सेंटेंस को जब कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बताता है इसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे विल का कन्वर्जन होगा वुड में। सो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, शी सेड दैट हर मॉम वुड बाय सम एग्स। उसने कहा था कि उसकी मॉम कुछ एग्स खरीदेंगी। वन मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, द पर्सन सेड आई विल नॉट इंक्रीज द टैक्स। ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि आदमी ने कहा मैं टैक्स नहीं बढ़ाऊंगा। यानी यहाँ पर कोई फ्यूचर एक्शन होने वाली है। सो ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को बता रहा है, मतलब उस आदमी ने ऐसे ऐसे कहा था। सो थर्ड पर्सन जब किसी फोर्थ पर्सन को बताएगा तो वो रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह से बताएगा, उस आदमी ने कहा था कि वो टैक्स नहीं बढ़ाएगा। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से लिखा जाएगा, द पर्सन सेड दैट ही वुड नॉट इंक्रीज द टैक्स। अब द पर्सन सेड आई विल नॉट इंक्रीज द टैक्स, यहाँ पे आई विल नॉट का कन्वर्जन हुआ ही वुड में। मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर के बारे में बात होती है तब हम विल के जगह पे वुड यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यू माइट बी थिंकिंग विच इज़ दैट थर्ड कंडीशन और सिचुएशन वेयर वुड इज़ यूज्ड। सो हियर इज़ द आंसर। वो थर्ड कंडीशन है जब हम किसी पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी समय में हमारी कोई एक आदत हुआ करती थी जो हम डेली करते थे, जो हमारी हैबिट थी। दैट टाइम वी यूज वुड। लेट्स सी दिस फ्रॉम द एग्जाम्पल। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। अ फैमिली वुड ऑलवेज गो टू द सी साइड फॉर हॉलीडेज, बट वन डे वी वेंट टू द माउंटेन इंस्टेड। अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। अब यहाँ पर हमने वुड यूज़ किया है। जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं बस से स्कूल जाया करता था। स्कूल जाया करता था, ये है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। मतलब जब वो छोटा बच्चा था तब उसकी हैबिट ये थी कि वो डेली बस से स्कूल जाया करता था। सो इसके लिए हमने वुड यूज़ किया है। अ फैमिली वुड ऑलवेज गो टू द सी साइड फॉर हॉलीडेज। हमारी फैमिली हॉलीडेज में सी साइड जाया करती थी, इसलिए हमने यहाँ पर वुड यूज़ किया है टू शो द पास्ट हैबिचुअल एक्शन। बट वन डे वी वेंट टू द माउंटेन इंस्टेड। बट एक दिन हम सी साइड जाने के बजाय माउंटेन देखने गए। अब ये जो थर्ड कंडीशन है जहाँ पर वुड यूज़ करते हैं, इस कंडीशन के एग्जाम्पल आपने बहुत सारे देखे होंगे। जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तब उस स्टोरी में वुड यूज़ किया जाता है, सो दैट वुड रिप्रेजेंट द पास्ट हैबिचुअल एक्शन। However, there is an important difference between would and used to. अब would and used to, ये जो दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये दोनों ही पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा नहीं है।
यूज टू कैन बी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि यूज टू ये कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट की स्टेट के बारे में बात करते हैं। पास्ट की स्टेट का मतलब है कि पास्ट में कोई चीज़ ऐसे हुआ करती थी, ना कि एक्शन। दैट टाइम वी यूज टू एज वेल एज पास्ट रिपीटेड एक्शंस। सो यूज टू ये यूज़ करते हैं जब हम पास्ट स्टेट्स और पास्ट रिपीटेड एक्शंस के बारे में बात करते हैं और हैबिट्स के बारे में बात करते हैं। बट आई रिपीट, बट वुड इज़ ओनली यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स। वुड ये जो है ये बस ओनली पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब वुड ये जो है पास्ट में किसी एक्शन के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। वुड इज़ नॉट यूज टू टॉक अबाउट पास्ट स्टेट्स। सो द conclusion is used to is used to talk about the past states as well as past habitual actions, but would is only used to talk about the past actions. Now let's clear the confusion between used to and would. See the example. When I was younger, I used to paint for 2 hours every day. The sentence is correct. This is a past repeated action or habit. So used to is acceptable here. मैंने पहले ही बताया था कि used to ये कब यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन और पास्ट स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में है। मीन्स आई यूज़ टू पेंट फॉर 2 hours एवरी डे। जब मैं यंग था तब मैं 2 घंटे पेंट किया करता था। 2 घंटे तक पेंट किया करता था, मतलब ये उसकी पास्ट हैबिचुअल एक्शन थी। सो देयर फॉर यूज टू इज एक्सेप्टेबल हियर। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हेन आई वॉज यंगर आई वुड पेंट फॉर 2 hours एवरी डे। जब मैं यंग था तब मैं डेली 2 घंटे पेंट किया करता था। नाउ यहाँ पर हमने यूज टू के जगह पे वुड यूज़ किया है। दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि यूज टू एंड वुड ये दोनों ही पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो देयर फोर वुड इज acceptable here. From these examples, we have now clear that would and used to are used to talk about the past habitual actions. Now past habitual actions के लिए वुड एंड यूज टू यूज़ किया जाता है, ये तो हमने अब देख लिया। बट मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वुड इज़ नॉट ओनली यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शंस बट ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर पास्ट स्टेट्स। तो ये हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। द एग्जाम्पल इज़ आई यूज टू बी अ पेंटर। मैं पेंटर हुआ करता था। हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, किसी ज़माने में मैं पेंटर हुआ करता था। Once upon a time, I used to be a painter. The sentence is correct because used to के साथ में हमने यूज़ किया है be. Concentrate on be. Be का मतलब है किसी चीज़ का होना। So I used to be a painter. किसी ज़माने में मैं पेंटर हुआ करता था। The sentence is correct. This is a past state. Therefore, used to is acceptable here. Now, इसी सेंटेंस को हम would के साथ में लिखेंगे। I would be a painter. The sentence is wrong. Why? Because मैंने आपसे पहले ही कहा कि would ये ओनली पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी ज़माने में मैं पेंटर हुआ करता था, ये एक स्टेट है ना कि कोई एक्शन है। सो देयर फोर आई वुड बी अ पेंटर, ये सेंटेंस रॉन्ग है। दिस इज पास्ट स्टेट, सो वुड इज़ नॉट एक्सेप्टेबल हियर। I hope you like the video. Please subscribe my channel Extreme English for more videos. Thank you.